السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی، تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے جو ازلی دشمن ہے، یعنی آدم علیہ السلام جو انسانوں کے سب سے پہلے ایک فرد ہیں، اس وقت سے اسے انسانوں سے دشمنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں اور فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس جرم میں وہ اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، اس لیے اسے یہ سزا ملی تھی۔ اس لیے اسے آدم علیہ السلام سے اسی وقت سے دشمنی ہو جاتی ہے، اسی وقت سے آدم علیہ السلام سے اس شیطان مردود کو بیر ہو جاتا ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ گناہوں میں مبتلا کر دے، اتنا زیادہ گناہوں میں پھنسا دے کہ انسان جہنم کا مستحق ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ انسان کے دماغ کے اندر، انسان کے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اور اس گناہ کو مزین کر کے، اس گناہ کو خوبصورت بنا کر کے، اس گناہ کے فائدے کو سمجھا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس گناہ کو کرو گے تو تمہیں یہ مزہ ملے گا، تمہیں اس طرح کی راحت ملے گی۔ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور وہ چونکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان کو وہ جہنم کے راستے کی طرف دھکیل دیتا ہے، اس لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بہت خوش ہوتا ہے۔ انسان شیطان کی باتوں میں آ کر کے دنیا کے اندر گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن گناہ کے بارے میں ایک بات سمجھ لے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ گناہ جب انسان کر لیتا ہے تو گناہ کا لذت تھوڑے دیر کے لیے باقی رہتا، تھوڑے دیر کے لیے رہتا ہے، لیکن گناہ کا اثر، یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے، جو اس اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے انسان کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ تو گناہ تھوڑے دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کی لذت تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کی سزا ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے جب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ انسان شیطانوں کی بات میں آ کر کے، شیطان کے ورغلانے میں آ کر کے گناہ کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر لیا ہے، اور اپنی زندگی کو خراب کر لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں دربار لگے گا، اللہ کے سامنے جب انسانوں کی پیشی ہوگی، اور جب اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر وہاں انسان جو گنہگار ہوگا، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ، ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر لیا ہے، اس شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کی باتوں میں آ کر کے گناہ کر لیے اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، اللہ اسے سزا دے اور ہمیں چھوڑ دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ شیطان اس دن کھڑا ہوگا، کل قیامت کے دن جب جنتی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جہنمی اللہ سے کہے گا، اللہ، ہم نے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر لیا تھا۔ تو پھر جو شیطان ہوگا، جو شیطانوں کا سردار ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، ایک ممبر لگے گا، ایک اسٹیج لگے گا، اس اسٹیج پہ کھڑا ہوگا، اور پھر وہ خطاب کرے گا اور وہ تقریر کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ جب وہ بات کرے گا تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی کہ اس سے پہلے اس طریقے کی بدبو کبھی بھی نہیں سونگھی ہوگی اہل جہنم نے۔ اور وہ کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور آج بھی میں اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہوں۔
वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं था, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया था। फस्तजबतुम ली, तुमने मेरी बातों को कबूल कर लिया। वमा अना अलैकुम मिन सुल्तान फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, तुम अपने आप को मलामत करो। मा अना बिमुस्रिखिकुम वमा अंतुम बिमुस्रिखी, न मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ और न तुम मेरी मदद करने वाले हो। तो कल क़यामत के दिन जिस शैतान के बहकावे में आकर के हम गुनाह कर लेते हैं, गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, वही शैतान स्टेज लगा करके हमें जलील करेगा और वो साफ इनकार कर देगा कि मैंने तुम्हें हाथ पकड़ करके किसी गुनाह की तरफ नहीं ले गया, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच करके गुनाहों की तरफ नहीं लाया, मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे दिल के अंदर वसवसा डाला था, मैं तो तुम्हारे सामने भी नहीं आया था। लेकिन अल्लाह का वादा जो तुम्हारे सामने कुरान की शक्ल में था, तुम्हारे सामने अंबिया आए तो तुम्हारे सामने नबी आकर के तुम्हें बताए, अल्लाह की किताब तुम्हारे सामने हमेशा के लिए मौजूद थी, तुमने उन चीज़ों को ठुकरा दिया, मैं तो तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आया, लेकिन तुम मेरी बातों को मान लिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम अपने अकल पे तुम्हारी अकल का कसूर है, तुम अपने ऊपर मलामत करो, मेरे ऊपर क्यों मलामत कर रहे हो? मलामत के मुस्तहिक तो तुम हो कि तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हारे दिल के अंदर जो आया उसे तुम मेरा जुर्म कह रहे हो, और तुम्हें अल्लाह ने अक्ल दिया था उसका इस्तेमाल नहीं किए, उस मुझसे बड़े मुजरिम तो तुम खुद हो, तुम अपने ऊपर मलामत करो। शैतान इंसानों को वरगलाने के लिए, इंसानों को बहकाने के लिए किस किस तरीके से हरबे करता है। ये तो क़यामत के मिसाल दिया, यानी मरने के बाद की मिसाल मैंने पेश की कि मरने के बाद किस तरीके से इंसानों का साथ छोड़ देगा, किस तरीके से इंसान को वो कहेगा कि हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम मुझे मलामत करने के बजाय अपने ऊपर मलामत करो। कभी कभी शैतान इंसान के सामने इंसान की दुनिया को भी तबाह करता है और दुनिया में भी इंसान को गुनाह में मुब्तला करने के बाद इंसानों का साथ छोड़ देता है। तफसीर की बहुत सारी किताबों के अंदर बनी इसराइल का एक वाक़या लिखा है कि बनी इसराइल का एक राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, वो हमेशा इबादत में मशगूल रहता था, 70 साल तक वो मुसलसल इबादत करता रहा और वो हमेशा रोज़े रखता था, और रोज़ा भी इस तरीके से रखता था कि 10 दिनों में सिर्फ एक मरतबा इफ्तार करता था, मुसलसल वो रोज़े रखता, बहुत बड़ा इबादत गुजार था बनी इसराइल का। शैतान उसे बहकाना चाहता था कि किसी भी तरीके से इसको बहका करके गुनाह में मुब्तला कर दे, अल्लाह की इबादत से हटा दे, लेकिन वो इतना बड़ा इबादत गुजार था कि उसके ऊपर शैतान का असर वो ख्याल डाल करके किसी भी तरीके से उस राहिब को नहीं बहका पा रहा था। तो उसे एक तरकीब सूझी, उसने ये किया कि एक राहिब की शक्ल में, एक तो वो खुद राहिब था, एक राहिब की शक्ल में शैतान राहिब की शक्ल इख्तियार करके उसके पास आता है और इबादत करने लगता है। वो इतना ज़्यादा इबादत करता है कि वो जो राहिब था उससे भी बड़ा इबादत गुजार बन जाता है, और जो राहिब था उसको इस शैतान पर जो राहिब की शक्ल में आया था बहुत ज़्यादा एतमाद हो जाता है और उससे अकीदत हो जाती है, उसकी बातों को फॉलो करने लगता है, उसकी बातों को मानने लगता है। जब वो शैतान अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है, उसे एतमाद में ले लेता है, तो उसे ऐसी दुआएं सिखलाता है कि जिन दुआओं के असर से लोगों को फ़ायदा हो, ऐसी दुआएं सिखला देता है कि जिसको पढ़ करके अगर राहिब किसी के ऊपर दम करे तो उससे उस बीमार को फ़ायदा हो जाता, बीमार शिफायाब हो जाता। अब शैतान क्या करता, वो अपना असर दूसरे पे डाल करके दूसरे को बीमार करना शुरू कर दिया, लोगों को बीमार करता और उसे पता बताता कि उस राहिब के पास जाओ और उससे दम कराओ, उससे दुआ कराओ तो तुम ठीक हो जाओगे। लोग उसके पास आते, वो दम करता, शैतान अपना असर हटा लेता, वो इंसान ठीक हो जाता है। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा वो बनी इसराइल के सरदार की एक खूबसूरत लड़की को, हसीन लड़की को राहिब के पास भेजने में कामयाब हो जाता है, उसको बीमार करता है और उसे पता बताता है कि फलां राहिब के पास जाओ, बहुत इबादत गुजार है, बहुत नेक है, उससे दम करा लो तो तुम शिफायाब हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। वो लड़की उसके पास राहिब के पास आती है और
वो शैतान उस हसीन लड़की को राहिब के सौमा यानी इबादत खाने तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। शैतान उस राहिब के दिल के अंदर भी तरह तरह के वसवसे डालता है और उस राहिब को उस लड़की के साथ जिना में मुब्तला कर देता है और इस जिना के असर से वो लड़की हामिला हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। अब राहिब को खतरा महसूस हुआ, उसे रुसवाई का खतरा सताने लगा कि अब तो मैं समाज में रुसवा हो जाऊंगा, इतना बड़ा मैं राहिब हूँ, इतना बड़ा इबादत गुजार हूँ, लोगों को मेरे ऊपर एतमाद है, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखलाऊंगा, मैं तो समाज में रुसवा हो जाऊंगा। तो शैतान जो राहिब था, जो बड़ा राहिब बना हुआ था, वो फिर इस राहिब के पास आता है और कहता है कि तुम रुसवाई से बचने के लिए ये कर सकते हो कि तुम इस लड़की को कत्ल कर दो। वो उस लड़की को कत्ल कर देता है रुसवाई से बचने के लिए। फिर खुद वो शैतान ही जो राहिब बना हुआ था लोगों में जाकर के उसकी खबर फैला देता है, लोगों को उसके खिलाफ भड़का देता है। लोग आते हैं, उसके इबादत खाने को तोड़ देते हैं और लोगों ने फैसला किया कि इसे कत्ल करके सूली पे लटका दिया जाए। फिर वो उस राहिब के पास आता है कि अब तो तुम्हें सूली दी जाने वाली है, तुम्हें कत्ल किया जाने वाला है, अब तुम्हें बचने की कोई सूरत नहीं है, अब तुम्हारे बचने की सिर्फ एक सूरत ये है कि तुम मुझे एक बार सजदा कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चूंकि वो बड़ा इबादत गुजार था, मशहूर था लोगों में, वो कहता है कि लोग मेरी बातों को मानेंगे, तुम एक मरतबा मुझे मेरे सामने सजदा कर लो, मेरे लिए एक मरतबा सजदा कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो पहले ही गुनाह कर चुका था, रास्ते हमवार हो चुके थे कुफ्र के, वो ज़िना कर चुका था, कत्ल कर चुका था, बड़े बड़े गुनाह कर चुका था, पहले ही कुफ्र के लिए रास्ता हमवार हो चुका था। अब वो उसके सामने सजदा कर लेता है। जैसे ही वो राहिब शैतान के सामने सजदा करता है, अब वो कहता है, वो खुल करके आ जाता है और कहता है कि मैं शैतान हूं, तुम मेरे कब्जे में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बहकाने के लिए, तुम्हें अपने कब्जे में लेने के लिए, तुमसे कुफ्र करवाने के लिए हमने ये सारे हथकंडे किए। तो शैतान इंसानों को बहकाने के लिए, इंसानों को गुनाह में मुब्तला करने के लिए, कुफ्र तक ले जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे करता है, तरह तरह के तरीके अपनाता है और इंसान को गुनाह में मुब्तला कर देता है। शैतान का मक्र इतना बड़ा मक्र है कि इंसानों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा मक्र औरतों का मक्र है, जिसके बारे में कुरान करीम ने औरतों के मक्र को, औरतों के फरेब को, इन्न कुन्न कैद अजीम, उसके मक्र को शैतान के भी मक्र से बड़ा करार दिया है कुरान करीम के अंदर। इस मक्र पे, इस टॉपिक पे इंशाअल्लाह दूसरी किसी वीडियो में बयान करूंगा।